Hello, hello everyone. Welcome to Tour Academy. So today I am going to explain again life processes, class 10th ka. This is the bio chapter, first bio chapter, and life processes itself it includes 4 types of life processes, which I already explained in my previous video. And number 1 like nutrition, number 2 respiration, number 3 transportation, and the last is excretion. So we were talking about nutrition. In my last session also we were talking about nutrition, and in that session I have explained about the nutrition in plants. That was the part 1 of nutrition. Today I am going to explain nutrition in humans. That is the part 2 of the same topic, that is nutrition. तो आज हम हायर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो उसमें आज टुडे तो आई एम टेकिंग ओनली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो इन ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन is a special kind of nutrition. We have already done different types of nutrition. We have done autotrophic nutrition, we have done heterotrophic nutrition. So of course we are also having heterotrophic nutrition, because in our body food cannot be produced. We have to take food from outside sources like from plants. Directly or indirectly we are all dependent upon plants for our food. And in this is known as heterotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition further can be classified into different categories like parasitic nutrition, saprophytic nutrition, and एक है उसमें से holozoic nutrition, that is known as holozoic nutrition, right? So in human being, what type of nutrition is taking place? It is holozoic nutrition. What does it mean? Holozoic nutrition, it means an organism, if he takes solid food particles in the form of carbohydrate, proteins, fats, etc. So when an organism takes solid particles as food, and that is known as holozoic nutrition. So in some other organism, even in amoeba also, holozoic nutrition is taking place. So human being we have holozoic nutrition, and because we are taking solid food particles like carbohydrate, proteins and fats in our body, and these are highly complicated molecules. They are organic molecules, very large molecules, very complicated organic molecules, and so they will not remain in our body as such. We will have to convert them into simple form, and they will have to break down into very simple form so our body can absorb it. So holozoic. So basic point is that in human being holozoic nutrition is taking place. So I am going to explain how this whole process nutrition in human takes place. तो उसके लिए first of all I will give you some introduction कि in human beings we have a very elaborate digestive system. The whole system एक complete एक separate system है nutrition के लिए, and that is known as digestive system. So I have drawn this diagram of digestive system in human being. In this digestive system we have a number of organs, because a system is made up of different types of organs. तो इसमें कितने organs हैं? Starting from buccal cavity से ये start है, that is our mouth cavity, also known as mouth cavity, or you can say technical word is buccal cavity. Buccal cavity leads to a tubular long structure that is known as esophagus. Commonly it is also known as food pipe. It acts as a passage for the food to come in the downward direction. How it takes place वो मैं भी आपको एक एक organ को जब डिटेल में मैं बताती हूँ, then I will explain that. Another part, the broadest part of the digestive system is stomach, and stomach के बाद stomach opens up
into a long 6 to 7 meter long tubular structure that is known as, it starts from here and this is known as small intestine. It is known as small intestine, but otherwise it is a very long structure. But फिर भी we call it small intestine because its lumen, इसका जो बीच का सुराख होता है, that is lumen is very narrow. That is why it is known as small intestine. Otherwise it is 6.5 meter long in human body. And उसके बाद this small intestine opens up into a broad intestine that is known as large intestine. Large intestine, not that much very long, but its lumen is large. इसका जो lumen narrow नहीं होता, it is large. That is why it is known as large intestine. So this is our large intestine like this, and large intestine के end में आके आ जाता है rectum. That is a broad part. Undigested food remains here for a while, and then in the end, anus, the whole undigested food excreted from through this hole that is known as anus. So these are the different parts of our digestive system, starting from buccal cavity and to anus. This whole one continuous tubular structure. This is known as our alimentary canal. Digestive system, the whole body, इसके जितने भी न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन्स, that is known as digestive system. And in our digestive system we have a long continuous tubular structure starting from mouth cavity or buccal cavity till the anus. This is a very long, एक सिरे से start होती है और दूसरे सिरे पे खत्म होती है. It's a tubular structure. So this tubular structure is also known as alimentary canal, and the whole system is known as digestive system. तो अभी मैंने आपको different organs बताए, starting from buccal cavity, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum and anus. Here it is appendix also. This is our vestigial organ. Vestigial organ means functionless organs are also present in our body. So this is a vestigial organ. इसका कोई participation नहीं है हमारे digestion में, but still it remains as a vestigial organ. Vestigial organ होते हैं functionless organs present in our body. So it is appendix. Large intestine जहाँ से start होती है वहीं पर एक small outgrowth type structure is there, that is appendix. And a part of this whole this alimentary canal, इससे related, इससे जुड़ी हुए there are some glands also. Like we have liver, एक largest gland है हमारे body की, liver, and liver के नीचे you will find this structure. This is known as gallbladder. ये liver produces bile. What is the function of bile? अभी इसका जो processing functioning है पूरे digestive system की, उसमें I will explain it. तो liver produces it secretes a chemical that is known as bile juice, and bile juice stores in this gallbladder. And here also below the stomach there is another gland. This is known as pancreas. Pancreas also secrete pancreatic juice. So this is liver, gallbladder, bile duct. gallbladder की जो duct है, tubular structure जो होता है bio में, उसको हम duct कहते हैं, DUCT, duct. तो gallbladder के साथ bile duct है because it carries the bile juice to the intestine, and liver is the largest gland present in our body. Liver, gallbladder, and in the buccal cavity also we have a gland, one pair of gland, that is salivary gland. हमारे buccal cavity में होती है, which produces saliva. So these are the different glands which are also attached to our digestive system. So ये तो आपको मैंने बताया कि digestive system में कौन-कौन से parts होते हैं. Now we start the functioning of this digestive system. अब इसकी functioning कैसे start होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो whole process है nutrition का in our body, it is a holozoic nutrition. Holozoic nutrition में we take complicated organic particles like carbohydrate and proteins and fats etc.
तो ये पार्टिकल्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय आवर ब्लड और आवर बॉडी as such. They have to be converted into their simplest form and soluble in the blood, क्योंकि blood इनको transport करेगा to each and every cell of the body. So this whole nutrition takes place under 4 steps. Number 1 is ingestion. Ingestion, what does it mean? Intake of food. सबसे पहले हमने intake of food करना है, हमने अपने माउथ में बकल कैविटी में फूड को लेके जाना है. अब बकल कैविटी में क्या होता है वो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज ingestion, that is intake of food in the mouth, in the buccal cavity. सिर्फ आप अभी इतना ही समझो. Number 2 is when the food enters into our body through buccal cavity. बकल कैविटी के बाद वो हमारे बकल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है एंड इट गोज टिल इंटेस्टाइन. बकल कैविटी से ही द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इंजेशन डाइजेशन शुरू हो जाता है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर बकल कैविटी ओनली. बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दिस डाइजेशन प्रोसेस देन टेक्स प्लेस in the stomach also and in the small intestine also. So these are the 3 organs where the digestion takes place: in the buccal cavity, in the stomach and in the small intestine. And these glands, different glands, they help in digestion. Now I will explain what is the meaning of digestion. Digestion का मतलब होता है conversion of complicated food, that is protein, carbohydrate and fats. They are very complicated organic molecules, so they are insoluble in our blood. Blood as such, it does not absorb them. It cannot absorb them because fats, carbohydrates and proteins, they are not soluble in blood. So whatever we eat, it has to be converted, it has to break down into very small and simple and soluble form. जब वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक्स डाउन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ओनली देन एंड soluble form, only then blood will start absorbing it and blood only will take them to each and every cell of the body. So digestion is such an important process. So second number पर digestion होगा. तो उसमें उसके बाद हो जाएगा when digestion takes place and अब digest हो गया food, convert हो गया in the simplest form. अब वो stomach में या intestine में तो पड़ा नहीं रहेगा, it has to be absorbed and enter into the blood. तो उसके बाद आ जाता है इसका digestion के बाद absorption. Absorption, what does it mean? Digested food has to be absorbed. That takes place in the small intestine. Small intestine की inner walls are just suitable to absorb more and more food, digested food. तो absorption होता है small intestine में. Small intestine के बाद digested food enters into blood because small intestine की outer surface पे there is a network of blood capillaries. So ultimately digested food through the small intestine it enters into blood. Blood में आ जाता है और blood it transport the digested food to each and every single cell और वहाँ पे जाके जो आपका ये है absorption के बाद assimilation होता है. Assimilation means कि all these simplest form of food material they start functioning in different cells in different organs. जाके cells में they starts doing their functions whatever it is. So functioning जो होना शुरू हो जाता है food का that is assimilation. And number 5 है egestion. Egestion means कि when you eat food it breaks down into simpler form
उसमें से सम अनडाइजेस्टेड फूड ऑल्सो रिमेन्स, क्योंकि बॉडी को जिस फूड की ज़रूरत है वही इट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेशन होगा, ब्लड में जाएगा. द फूड विच इज अनडाइजेस्टेड, जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, that will remain in the stomach, and stomach से वो large intestine में आएगा, large intestine से rectum में आएगा, through anus it will be removed from the body, and because that is very harmful, undigested food not required by the body, so it has to be removed from the body. So natural way में all the arrangements are done कि जो undigested food होता है वो automatically वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रांसपोर्ट नहीं करता टू ईच एंड एवरी सेल, एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम. सो दैट इज नोन एज egestion. Waste material that is undigested food, it is removed from the body, that is known as egestion. So these are the four main processes taking place in our digestion in Holozoic nutrition. So अब मैं आपको एक एक करके all these processes explain करूँगी in detail. तो नंबर 1, ingestion. Ingestion means taking food inside the buccal cavity. तो buccal cavity में जब food आ जाता है तो उसमें दो तरह से process होता है. एक तो उसका physical process, physical you can say physical digestion होता है, और दूसरा बकल कैविटी से ही उसका प्रॉपर केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है. सो इन अदर वेज यू कैन से दैट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बकल कैविटी. माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन. सो इन बकल कैविटी एक तो फिजिकली फूड गेट्स, आप उसको च्यू करते हो तो food gets converted into small particles, whatever you eat वो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बदल जाता है, और उसमें हमारा हेल्प करता है सलाइवा. बकल कैविटी में फूड आ चुका है, राइट. सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन. इंजेशन में एक तो फिजिकल डाइजेशन हो जाता है. फिजिकल मीन्स कि यू च्यू द फूड, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया, बस फूड हैज कन्वर्टेड इनटू इट्स पेस्ट फॉर्म, और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक्स डाउन हो जाता है, बट देयर इज नो केमिकल चेंज. दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन. हियर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकली चेंज आता है फूड के अंदर इन द बकल कैविटी. हाउ इट कम्स कि योर बकल कैविटी प्रोड्यूसेस सेमी लिक्विड सब्सटेंस दैट इज नोन एज सलाइवा. वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स. ये सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने लिखी है. सलाइवरी ग्लैंड्स present in our buccal cavity, one pair of salivary glands, and these salivary glands they produce a semi-liquid substance that is known as saliva. जो भी हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में anything, if कोई भी अगर चीज अगर प्रोड्यूस होती है वो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है. वो ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस होती है, बिना मतलब के वो प्रोड्यूस नहीं होती है. It has something or other function. तो हर जो भी इसके अंदर सिक्रीशन होगा, any chemical, any substance is produced in the whole digestive system. I will explain the function. क्योंकि आपको important क्या है कि वो function क्या करता है हमारे body में during digestion. So saliva is produced by salivary glands, and these salivary glands are present in your buccal cavity, right? बकल कैविटी में होता है. तो सलाइवा दो काम करता है, दो फंक्शन करता है. एक तो सलाइवा बीइंग अ लिक्विड, इट मॉइस्ट द फूड, जो भी आपने खाया है उसको मॉइस्ट कर देता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू पेस्ट फॉर्म एंड मॉइस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. मिक्स होके इट मिक्सेस विद द फूड एंड उसको थोड़ा मॉइस्ट कर देता है. और यहाँ पे एक बात मैं और भी बता देती हूँ कि whatever you eat, चाहे आप सॉलिड ले हो चाहे कुछ भी ले हो, it has to be converted into its semi liquid form या लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी में कन्वर्ट होना पड़ता है उसको, अदरवाइज इट विल नॉट गेट डाइजेस्टेड. सो सलाइवा एक काम तो करता है, मेक्स द फूड मॉइस्ट कर देता है. नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सलाइवा. सलाइवा गिव्स
enzyme also. What are enzymes? Enzymes are some chemicals, उनको chemical catalyst भी कहते हैं. इनके presence में ही जितने भी इसमें changes आएंगे food के अंदर, they will take place in the presence of these enzymes. अगर enzymes नहीं produce होगा, your food will not get digested. So enzymes को हम biocatalyst भी बोलते हैं. तो यहाँ से saliva gives an enzyme also. That enzyme is known as salivary amylase. क्या बोलते हैं उसको? salivary amylase. इसका क्या फंक्शन है? सलाइवा का फंक्शन एक तो हो गया, इट मेक्स द फूड मॉइस्ट. अब सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है, इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है कि जो आपने फूड में स्टार्च खाया, starch itself, it is a very complicated form of food. It will not be absorbed by your blood as such. It has to be converted into its simplest form. तो starch को simplest form में तो salivary amylase नहीं convert करता, but little bit of simpler, थोड़ा simpler उसको कर देता है. That is salivary amylase converts food, starch जो आपने खाया उसको एक sugar में convert कर देता है. And that sugar is maltose. Maltose नाम की एक sugar में convert कर देता है. We have different types of sugars. आप जो घर में common sugar use करते हो चाय कॉफी में, that is known as sucrose, C12H22O11 उसका फॉर्मूला होता है. galactose, fructose, फ्रूट्स के अंदर जो होता है fructose, different types की sugar होती है. galactose है, maltose है, fructose है, and glucose is the simplest form. किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो, वो ultimately it gets converted into its simplest form, that is glucose. maltose भी एक तरह की शुगर है, but it is not the simplest form. तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ये किसमें? माल्टोज नाम की एक शुगर में कन्वर्ट करता था. इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब आप रोटी खाते हो कनक की, गेहूं की रोटी भी, या बॉइल्ड राइस, इफ यू टेक बॉइल्ड राइस एंड च्यू देम, उसमें कोई नमक नहीं है, कोई शुगर नहीं है, च्यू इट एज सच, आफ्टर सम टाइम यू विल टेस्ट स्वीटनेस. आपको स्वीट लगने लग जाएगा, मिठास आ जाएगी उसमें. क्यों मिठास आ जाती है? कि च्यू करते करते इन द मीन टाइम सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस हुआ, सलाइवा ने प्रोड्यूस किया, एंड इट विल कन्वर्ट योर स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर. सो आपको स्वीट टेस्ट आएगा उसका. दिस इज द रीजन, क्योंकि वो माल्टोज नाम की शुगर उसमें बन गई है. तो सलाइवा हैज दीज टू फंक्शंस. यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, कार्बोहाइड्रेट आप जो खाते हैं उसके 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है. यहाँ पे मैं वैसे आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो आपका फूड का एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, इट हैज 3 फॉर्म्स. एक तो होता है इसका शुगर, सिंपल शुगर जो आप खाते हो, और डिफरेंट टाइप की शुगर है. नंबर 2 होता है इसका स्टार्च, एंड नंबर 3 इज सेल्यूलोज. दैट इज द फाइब्रस मटेरियल जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आप लेते हो, दैट इज also a carbohydrate. So we have 3 types of carbohydrates: sugar, starch and cellulose. यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि when you eat a carbohydrate in the form of sugar and starch, starch will get digested in the body and will convert into glucose. Glucose is the ultimate simplest form of sugar or starch. But the third type of carbohydrate, that is cellulose, it does not get digested in our body. In human body, it does not get digested. जो आप सैलड खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो, स्पिनच खाते हो, लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, they provide you minerals and vitamins and cellulose देते हैं. Cellulose is a type of carbohydrate, but वो ऐसा एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, cellulose, which does not get digested in our body, but still it is very important for us, इसीलिए हम उसको खाते हैं. पर हमारे बॉडी में क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी वी डोंट हैव दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक जितने भी हर्बीवोर्स हैं, काउस हैं, बफलोज हैं, उनके बॉडी में एंजाइम्स हैं टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, तो वो घास वगैरह खा करके भी उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं.
उनके बॉडी में दे हैव एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट इन ह्यूमन बॉडी doesn't have any enzyme to digest cellulose, but still for other purposes it is important for us. वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है सेल्यूलोज की. सो हम अभी शुगर एंड स्टार्च की बात कर रहे हैं और इसको हम देखते हैं कि कैसे ये स्लोली एंड स्टेडीली विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. तो नेक्स्ट है हमारा, अब ये फिजिकल केमिकल डाइजेशन हो गया माउथ से. नाउ द फूड कम्स इनटू योर esophagus. Esophagus is also known as food pipe. Esophagus में अब क्या होता है? Esophagus में होता है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता esophagus में. मतलब कि कोई फूड के अंदर केमिकल चेंज नहीं आता. देयर इज नो क्या बोलते हैं, कोई उसमें डाइजेशन नहीं होता उसका. नथिंग इज देयर. इट जस्ट एक्ट्स एज अ पैसेज. एक पैसेज का काम करता है ये फूड के लिए. सो फूड स्टार्ट्स slowly and steadily moving in this esophagus, which is a long tube-like structure. तो इसमें से धीरे धीरे शिफ्ट होता होता फूड एंटर्स इनटू स्टमक. सो इट एक्ट्स एज अ पैसेज. अब पैसेज में काम करने के लिए भी इसमें स्पेशल अरेंजमेंट है कि इसकी जो ईसोफेगस की इनर वॉल्स हैं, they rhythmically they contract and they relax. तो rhythmically वो contract होती है and expand होती है. This movement, rhythmic movement, contraction and relaxation का जो rhythmic movement है inner walls of the esophagus, it helps, this rhythmic movement helps the food to shift in the downward direction. Of course, because of the gravity also, पर यहाँ पर एक esophagus की inner walls में there is a special arrangement to shift the food in the downward direction and food will enter into stomach. So this movement, rhythmic movement, which pushes the food in the downward direction is known as peristaltic movement. Right? कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन योर एमसीक्यूज. बहुत ज्यादा पूछते हैं ये क्वेश्चन कई बार, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि रिदमिक मूवमेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस व्हिच पुशेस द फूड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द स्टमक. सो दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अच्छे से इसको आप याद रखना. तो अब ईसोफेगस का काम भी खत्म हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया उसमें. नाउ द फूड एंटर्स इनटू स्टमक. स्टमक में बहुत कुछ होता है इसमें स्टमक के अंदर, बिकॉज इट इज द मेन पार्ट ऑफ योर डाइजेशन का. यहाँ पे जो मैक्सिमम डाइजेशन इसी में होता है. तो स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं, दे सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस. 3 टाइप के वो सिक्रीशन करती हैं आपके स्टमक के अंदर. 3 टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. नंबर 1, एक तो एसिड प्रोड्यूस होता है आपके स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर, और वो सिक्रीशन करती हैं किसका, 3 टाइप के सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती हैं. नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. तो हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनर वॉल्स ऑफ योर स्टमक. साथ के साथ मैं फंक्शन बता देती हूँ उसका. 2 फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इन द स्टमक. नंबर 1 इज इट मेक्स द मीडियम, फूड का जो मीडियम है, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक. फूड के मीडियम को ये एसिडिक बना देता है, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, जितना भी डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर फूड का, इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, सो द एंजाइम्स कैन वर्क इन दिस मीडियम. एंड समटाइम्स क्या होता है कि आप फूड में कुछ इनडाइजेशन हो जाता है, या आप ऐसा कुछ फूड खा लेते हैं जो आपको सूट नहीं करता, तो already your stomach is producing so much acid and आप भी कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं, तो sometimes in the stomach acidity increases, acidity कहते हैं उसको.
और उसका वैसे तो ट्रीटमेंट हो जाता है अगर डॉक्टर से कुछ भी आप उसके लिए, बिकॉज योर स्टमक इज बिकमिंग मोर एंड मोर एसिडिक, तो उसके लिए एक अल्कलाइन सब्सटेंस दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो में भी सोडा होता है जो बेकिंग सोडा, वो होता है NaHCO3, तो वो लेने से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, अल्कलाइन सब्सटेंस को बेसिक्स कहते हैं, तो उनसे रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देता है फूड को, तो ऐसे इलाज हो जाता है। बट समटाइम्स दिस एसिडिटी बिकम्स सो डेंजरस कि उससे कई बार पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है। सो पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज जो कि मोर एसिडिटी इन द फूड अगर स्टमक में आपके होती है, तो समटाइम्स इट हैपन्स, इनर वॉल्स में बॉइल्स हो जाते हैं स्टमक के, एंड दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एक तो फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कि इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, एंड दूसरा फंक्शन एक और है कि व्हेन यू ईट फूड, सो अ नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो एंटर इनटू योर बॉडी अलोंग विद योर फूड। सो दिस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द दोज हार्मफुल बैक्टीरिया, तो किल्स द बैक्टीरिया, ये दिस इज another function of this hydrochloric acid. एक तो makes the medium acidic and kills the bacteria, harmful bacteria. So this is the function of hydrochloric acid. ये तो एक secretion था स्टमक में। दूसरा secretion स्टमक में होता है अगेन, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने बताया secretion स्टमक में, और दूसरा secretion होता है म्यूकस। सलाइवा तो हुआ था हमारे बकल कैविटी में, म्यूकस it is again it is secreted from the inner walls of the stomach. It is a semi liquid substance. ये भी दो काम करता है, एक तो म्यूकस काम करता है कि it prevents the inner lining of the stomach from its own secretion, that is HCl. जो इनर लाइनिंग HCl प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज HCl बीइंग एन एसिड, इट इज कोरोसिव इन नेचर। सो म्यूकस जो स्टमक की इनर लाइनिंग ने जो अपना खुद का जो सिक्रीशन ये किया HCl से, उससे प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस फॉर्म्स अ वेरी थिन फिल्म ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, तो म्यूकस उसे प्रिवेंट करती है हमारे स्किन को, स्टमक की इनर वॉल को कोरोड होने से, खराब होने से। और म्यूकस के अंदर एक तो ये काम हो गया म्यूकस का, और दूसरा है कि इट अगेन मॉइस्ट द फूड, क्योंकि फूड का पेस्ट फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। सो म्यूकस डज दिस थिंग आल्सो, मॉइस्ट द फूड फर्दर। कुछ मॉइस्ट हुआ वो बकल कैविटी में, कुछ यहाँ पे भी ये करेगा। और तीसरा एक और सिक्रीशन है, दैट इज नोन एज पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंजाइम, and this enzyme, what does it do? Partially it digests the carbohydrate को not carbohydrate, protein को ये proteins को partially digest करता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शियली का मतलब कि अगर प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, then it gets converted into amino acids. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स। पर यहाँ पे स्टमक में जो पेप्सिन है, इट डज नॉट डाइजेस्ट द प्रोटीन कंप्लीटली एंड कन्वर्ट इट इनटू अमीनो एसिड्स। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन, पार्शियली इसको डाइजेस्ट करता है, एंड प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन। इसी को पेप्टोन को भी पेप्टाइड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड। सो प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन और पेप्टाइड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम पेप्सिन, राइट। बस इतना काम करता है पेप्सिन। कंप्लीटली इट डज नॉट डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, वो नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता। पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन और पेप्टाइड भी इसको बोलते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ 3। अभी आपको मैंने बताया था कि स्टमक, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीशन। तो वो हो गया आपका एक HCl,
उसके मैंने फंक्शन बता दिए। म्यूकस, उसके आई हैव टोल्ड द 2 फंक्शंस। और प्रोटीन पेप्सिन नाम का जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसका भी मैंने फंक्शन बता दिया। इट इज एन एंजाइम, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन और पेप्टाइड। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। अदरवाइज प्रोटीन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड बड़ा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन प्रोसेस, इनटेक ऑफ फूड हो गया था। ये ऑल, दिस इज ऑल डाइजेशन। तो अभी यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है कि जब इतना काम हो जाएगा, स्टमक का काम इफ कंप्लीट्स, देन द फूड ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टमक इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई यहाँ से, देयर इज अ होल, उसको स्फिंक्टर कहते हैं यहाँ से। तो वो होल से निकल के एंड द फूड फ्रॉम द स्टमक इट एंटर्स इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आ जाता है फूड। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? इसमें बहुत बड़े चेंजेस आते हैं फूड में। कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, हर चीज कंप्लीटली इट गेट्स डाइजेस्टेड। लाइक व्हाटएवर यू ईट, कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने पर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज। चाहे शुगर हो, चाहे स्टार्च हो, these are the 2 types of carbohydrate which can be digested in the body. ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज is the simplest form of any type of carbohydrate, instant energy से मिलती है हमें। and number 2, हमारे जो अगर आपने जो प्रोटीन खाया अभी पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था वो इनटू पेप्टोन और पेप्टाइड में, प्रोटीन आल्सो गेट्स कन्वर्टेड कंप्लीटली, उसका डाइजेशन हो जाता है इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है अमीनो एसिड्स, दे फॉर्म प्रोटीन। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। और नंबर 3, अगर आपने फैट भी खाया तो फैट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको भी ब्रेक डाउन करना, डाइजेस्ट करना, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट इन आवर बॉडी, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर अरेंजमेंट इज देयर। तो फैट भी, ये बाइल जूस जो इसमें प्रोड्यूस होता है लिवर में, फैट को पहले स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड दैट कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। So all this happen, all these processes digestion के happen in your small intestine. तो अब मैं one by one आपको बताती हूँ कि कैसे ये होते हैं। तो whenever as soon as this food enters into small intestine, यहाँ से small intestine में ये food आपका आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले देखो ये है, आपको मैंने बताया बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, दैट इज लिवर। तो जो लिवर है वो एक लिक्विड, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, एक सिक्रीशन, इट सिक्रीट्स अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज बाइल जूस। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड and it gets stored in the gall bladder. Gall bladder में वो bile juice store होता है, greenish color का substance होता है, that is bile juice, you can say bile also. तो that gets stored in the gall bladder. ये आपको मैंने बताया यहाँ पे, this is gall bladder. green color की gland होती है क्योंकि bile जो है it is greenish in color. So gall bladder में this bile gets stored, प्रोड्यूस होता है लिवर में, स्टोर किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में। एंड व्हेनेवर योर बॉडी रिक्वायर्स फॉर डाइजेशन, रिलीज होता रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता रहता है। गॉल ब्लैडर से ये स्टोर्स बाइल एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट बाइल एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ पे देखो स्मॉल, यहाँ पर इस पोर्शन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? ये बाइल डक्ट है इसकी, ये जो गॉल ब्लैडर के साथ बाइल डक्ट है, डक्ट मींस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल जूस का क्या फंक्शन है हमारा डाइजेशन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया हमारा बाइल। तो एक फंक्शन तो इसका ये है कि इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन, बेसिक एल्कलाइन
का मतलब बेसिक। अभी तक, इससे पहले, बिफोर दैट, द मीडियम ऑफ योर फूड वॉज एसिडिक। इन स्टमक में द मीडियम ऑफ योर फूड वॉज एसिडिक। अब एज सून एज द फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आ जाता है, बाइल जूस आ जाता है। बाइल जूस का एक फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन क्यों कर देता है? नेचुरल वे में, बिकॉज हमें मालूम है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, दे वर्क इन एल्कलाइन मीडियम। वो एल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शन करेंगे। लाइक इन द केस ऑफ स्टमक, all the enzymes, they were working in acidic medium, so in stomach acidic medium was required, so HCl produce हुआ। now the medium should be alkaline in the small intestine, तो small intestine में bile ने उसको alkaline कर दिया, so all the enzymes will function properly। नंबर 2, bile का एक और काम है कि it breaks down in the small intestine, it breaks down the fat molecules। अभी मैंने बताया, they are very large molecules and very complicated molecules। तो fat molecules small globules में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? small globules में, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। so it will become easier to digest it। तो ये भी बाइल का काम है कि फैट को it breaks down, bile breaks down fat, big particles, complicated particles into small globules, so the digestion of fat will become easy। तो this is another function of bile। तो ये bile का function हो गया। उसके बाद here there is another gland, this is known as pancreas। this leaf-like, below the stomach there is a leaf-like पत्ती की तरह एक और gland है, this is known as pancreas। पैंक्रियास का क्या फंक्शन है? पैंक्रियास का फंक्शन है कि इट ऑल्सो गिव्स पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस देता है पैंक्रियास हमारा। और पैंक्रियाटिक जूस भी क्या काम करता है कि ये जो पैंक्रियास, एक तो काम करता है पैंक्रियास, एक तो इसका काम है पैंक्रियास के अंदर जो आपका फैट पहुंचा उसको भी, एक तो ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट कर देता है। फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है फैटी एसिड्स एंड एक और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो उसमें कन्वर्ट करता है। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो बने थे अभी पीछे, दे आर इजियर टू डाइजेस्ट, तो कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसमें से एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इससे पहले इन द बकल कैविटी प्रोड्यूस हुआ था सलाइवरी एमाइलेज। जस्ट रिमेंबर दैट इन द बकल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड आल्सो दे प्रोड्यूस सलाइवरी एमाइलेज। उस सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट किया था। है पैंक्रियास से भी एक एंजाइम निकला, दैट इज बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास, सो पैंक्रियाटिक एमाइलेज उसको बोलते हैं। एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो माउथ में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते पैंक्रियाटिक एमाइलेज विल कंप्लीट दैट डाइजेशन, और वो प्रोटीन को स्टार्च gets converted into simplest form of starch, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। So this is the function of pancreas, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एक तो वो ग्लोब्यूल्स फैट को कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में डाइजेशन करता है फैट का। नंबर 2 पैंक्रियाटिक एमाइलेज, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। सो दिस इज द फंक्शन। और इसके बाद आपको मैं ये बता देती हूँ, लास्ट में
जो डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट, अभी भी कहीं कहीं डाइजेशन जो रह जाता है थोड़ा बहुत, there is another a very important chemical which is produced by the inner walls of the small intestine, that is known as succus entericus. succus entericus, ये किसी किसी बुक में लिखा है, किसी में नहीं लिखा, so you must remember this. succus entericus, this is a miracle substance. इसका क्या काम है कि जो भी डाइजेशन इनकम्प्लीट रह गया, दिस succus entericus complete the digestion. जैसे अगर प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत डाइजेशन रह गया, तो प्रोटीन को के डाइजेशन को कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट करता है succus entericus इनटू अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में बदल देता है. प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, इन केस रह गया थोड़ा बहुत, तो ये succus entericus ये काम करता है, उसको कंप्लीट कर देता है. तो प्रोटीन का पूरा डाइजेशन कंप्लीट. नंबर 2, succus entericus, जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं आपने देखा वो माल्टोज में ही रह गया, कहीं कहीं अगर उसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है, तो succus entericus कोई चांस लेता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईदर शुगर और स्टार्च. किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, एक्सेप्ट सेलुलोज, वो डाइजेस्ट नहीं होता हमारे बॉडी में. एंड नंबर 3, फैट. फैट का भी अगर डाइजेशन लोब्यूल्स तक ही रह गया या पूरा नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, तो फैट को भी कंप्लीटली डाइजेस्ट करके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स प्लस एक अल्कोहल बनता है, दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल. जिसके नाम के पीछे ऑल लग जाता है, इट मींस केमिकली इट इज एन अल्कोहल. तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, दीज आर द 2 सब्सटेंसेस ऑफ फैट जिनसे मिलकर फैट बना होता है. तो ये succus entericus ने सारा डाइजेशन हमारा कंप्लीट कर दिया, राइट. तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया. अब डाइजेशन के बाद क्या होता है? अगर तो सारा फूड आपका इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, तो देयर इज नो यूज ऑफ इट. इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड to each and every single cell of the body so that can function there, अपना अपना फंक्शन वो कर सके. तो उसके लिए योर इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इज स्पेशली मेड. एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में, सो दे कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर डाइजेस्टेड फूड, और उसको ब्लड में मिक्स करके डाल के एंड ब्लड उसको ले जाता है पूरे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो अब ब्लड में पहुंचे कैसे? मैक्सिमम जो डाइजेस्टेड फूड शुड रीच इनटू द ब्लड. ब्लड में सॉल्यूबल होना चाहिए, तो सॉल्यूबल तो हो गया डाइजेशन में. अब जितना भी हमने फूड खाया, इट इज सॉल्यूबल इन, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, इट इज सॉल्यूबल इन योर बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड. ब्लड में सॉल्यूबल है तो ब्लड उसको लेके जाएगा. तो ब्लड को वो फूड एब्जॉर्ब करना है, तो कैसे होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स है, दे आर हैविंग सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स. These structures are known as villi. Inner walls of your small intestine, they are having some finger-like outgrowths, finger-like projections. जैसे ये inner wall है intestine की, इसमें you can see inner wall is having these finger-like projections. इस तरह से finger-like projection, इस तरह से finger-like projections होते हैं आपके inner wall of intestine. What is the function of these villi? इनको बोलते हैं villi. These are known as villi. Villi. These villi, इनका what is the function of these villi? Number 1. Now what is the function of small intestine? To absorb food. Villi, they increase the surface area so much that the inner walls of small intestine should absorb more and more amount of digested food. So important, most very important function of villi is that they increase the surface area. अगर इसकी walls ऐसे ही होती inner walls small intestine की, तो surface बहुत कम होता. तो natural way में देखो कि inner walls of your small intestine, they have these finger-like projections. यहाँ भी मैंने draw किया है. So these finger-like projections are known as villi, and they increase the surface area so much that intestine inner walls, they absorb more and more food, digested food. और हमारे small intestine और villi के
पीछे और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि उनके वॉल्स के थ्रू डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है आपका, इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है. और ब्लड इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल. जैसे प्रोटीन का फंक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल्स. जो डैमेज होता है, सेल्स टिश्यूज डैमेज होते हैं, उनको मेंटेन करता है और नए नए सेल्स बनाता है. प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. एंड आपके जो इसका कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट गिव्स एनर्जी. आपने देखा है कि कभी स्कूल में बच्चे कभी बेहोश हो जाते हैं या गिर जाते हैं या उनको कुछ हो जाता है, तो टीचर्स वहाँ पे आपका एक सिक रूम होता है स्कूल में, उसमें इंस्टेंट उनको ग्लूकोज दिया जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी देता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इंस्टेंट एनर्जी, एकदम मिनटों सेकंडों में एनर्जी मिलती है इससे. ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में, व्हाई ग्लूकोज इज गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन समटाइम बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट की. एंड तीसरा जो आपका फैट है, फैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल देता है. हमारे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, बट जो फैट है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. पर क्या है कि हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमारी पूरी हो जाती है. और कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड भी है उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, फैट इतना नहीं होता है. कार्बोहाइड्रेट तो बॉइल्ड राइस में हो गया, चपाती में हो गया, कितनी चीज़ें हम ऐसी खाते हैं जिसमें शुगर है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है. तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो एनर्जी की कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट हो जाती है. पर फैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ योर एनर्जी. सो सका सेंटरीज तक, और मैंने आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड तक पहुंचा दिया. खत्म हो गया काम, चला गया ब्लड, उसको एक एक सेल में ले गया, ब्लड ने अपना काम शुरू कर दिया. तो फंक्शन जो डाइजेस्टेड फूड कर रहा है दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन भी हो गया, फंक्शनिंग, एसिमिलेशन. फोर्थ पार्ट आपको, फोर्थ स्टेप मैंने बताया था इसका डाइजेशन का, एसिमिलेशन, फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो बॉडी में करते हैं, तो दैट इज एसिमिलेशन. और एसिमिलेशन के बाद अब क्या होगा, जितना हमारा डाइजेस्टेड यूजफुल फूड था वो तो ब्लड में चला गया, बट नाउ व्हाट हैपेंस टू अनडाइजेस्टेड फूड. अब सारा का सारा फूड तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो जाता, सम अनडाइजेस्टेड फूड आल्सो रिमेन्स इन द बॉडी. तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ऐसे घूम फिर के, और वो आ जाता है रेक्टम में. लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डाइजेशन का फंक्शन नहीं है, देयर इज नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन. इसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में भी देयर इज नो डाइजेशन. बस इसका एक ही फंक्शन है. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड के अंदर जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इन योर बॉडी, कंपोनेंट इन योर बॉडी. तो जो एक्सेसिव वाटर होता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है. ये छोटी छोटी जो आपको बातें बता रही हूँ, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दे आस्क अबाउट दिस कि विच पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द फूड, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. तो दैट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स दे आर ऑल्सो ऐसे रफली होती हैं इस तरह से. सो दे आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, और उससे जितना भी एक्सेसिव वाटर है, वाई टू वेस्ट दैट वाटर, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स. सो उसके बाद सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड विल कन्वर्ट, एंड रेक्टम में इट रिमेन्स फॉर अ व्हाइल इन रेक्टम, और उसके बाद टाइम टाइम पे इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द removed from the through the anus. तो वो फूड अनडाइजेस्टेड हमारे बॉडी में रहना becomes very dangerous, harmful होता है, poisonous होता है, तो वो इसमें से निकल जाता है. तो that is the whole nutrition in human. अब यहाँ पे मैंने अपेंडिक्स भी आपको बताया है. अपेंडिक्स does not participate in anything. It is a vestigial organ. मैंने बताया था हमारे बॉडी में over 200 types of structures are present which are not required.
पर बस ये बताते हैं, हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि हमारे बॉडी में इनका कोई काम नहीं है, पर हमारे से जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दे मस्ट बी वर्किंग। तो ये अपेंडिक्स हमारे से लोअर एनिमल्स लाइक काउस बफलोज में तो काम कर रहा है बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स। वी आर ओमनीवोर्स, ह्यूमन भी ओमनीवोर होते हैं, तो हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है, पर ये पड़ा रहता है, कोई इसका नुकसान भी नहीं है, इट रिमेन्स लाइक दिस। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि इसके अंदर कोई फूड का पार्टिकल चला जाता है, इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, फूड पार्टिकल इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, फिर उससे हमारे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस अपेंडिक्स को, अपेंडिसाइटिस कहते हैं इसको, अपेंडिक्साइटिस, इसको रिमूव करके कट करके निकाल देते हैं। तो बस ये इसका है, अदरवाइज इट इज़ नॉट having any harmful effect, it is not having function in our body. So this is about all your whole human digestive system. So I will बस इतना ही आज, I will stop here only, this much आपको पूरा ये एक्सप्लेन करके बता दिया। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, नाउ वी हैव डन न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसके मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए भी थे, इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, 10-15 क्वेश्चंस का मैं एक अलग इसका सेशन लूँगी, तो उसमें आई विल एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड जस्ट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच।